पेज नंबर 67। हाँ जी, शेयर कर लो ना थोड़ा बहुत यार, साथ साथ बैठ जाओ ना, शेयर कर लो, आ जाओ, जल्दी कर लो यार, टाइम ज़ाया नहीं करो। पेज नंबर 67 वॉल्यूम 1। चले छेदी छेदी, टाइम नहीं है बच्चों, आ जाए। बिलाल स्क्रीन शेयर कर लिया आपने? वन। चले जी। अच्छा, जो पैराग्राफ में पढ़ूंगा आपने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है, सही, और उसी को हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितना मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा आपने उसी को हाईलाइट करना है। सबसे पहली चीज, why standards requires the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the related parties. As per ISA 700, auditor expresses the following opinion. In our opinion, the accompanying financial statement presents fairly in all material respect in accordance with IFRS. Now, what is the relevant IFRS for related party? IS 24. ये कहता क्या है? The objective of this standard is to ensure that an entity's financial statement contains the disclosure necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by the transaction and outstanding balances, including commitment with such parties. As management is required to disclose all transactions with the related parties, therefore ISA 550 deals with the auditor's responsibility relating to related party relationship and transaction in an audit of, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ना, उसको सामने रखना है बच्चों। इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिकली इट एक्सपेंड्स ऑन हाउ आइजा 315, आइजा 330 एंड आइजा 240 फ्रॉड वाला है यहाँ पे। आइजा 240 आर टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। वो कहता है सिंपल सी बात, मैं तीन बातें करता हूँ। रिलेटेड पार्टी पे क्या रिस्क हो सकते हैं, फ्रॉड के क्या रिस्क हो सकता है, और उसके अगेंस्ट, उस रिस्क के अगेंस्ट आपने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। क्या ये बात समझ आती है आपके? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे है, सबसे लास्ट बॉक्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइजा 550 टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, बच्चों सारे वर्ड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े तो उसको सामने रखेगा। टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, टू आइडेंटिफाई द fraud risk factor if any arising from the related party relationship and transaction that are relevant to the identification and assessment of the risk of material misstatements due to रिलेटेड पार्टी की इतनी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लें ताकि रिलेटेड पार्टी के ऊपर आप रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर सकें और असेस भी कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 2 क्या होगा? ऑब्जेक्टिव 2 क्या होगा? रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, रिस्क की असेसमेंट कर ली, तो ऑब्जेक्टिव 2 क्या होगा? उसके अगेंस्ट क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? सफिशिएंट to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the related party relationship and transaction have been appropriately identified, account for and disclosed in the financial statement in accordance with the framework which is IFRS। और IFRS का कौन सा IFRS? IS 24। तो यहाँ तक बात समझ है, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी से कंसिस्टेंटली हम उसको रीड कर रहे हैं। आ जाए पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर, to obtain an understanding of the related party relationship and transaction. Who is responsible to prepare FS in accordance with IFRS? Yes, if the management is responsible, then to obtain an understanding of the related party relationship and transaction, the auditor shall make inquiries with the management such as the identity of the entities related party, including changes from the nature of the relationship between the entity and these related parties, whether the entity entered into any transactions with these related parties during the period, and so the type and the purpose of this transaction। ये आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरीज करनी थी। As management is also responsible for design and implementation of internal control, therefore auditors shall also inquire with the management to obtain the understanding of the control that the management has established to
identify, account for and disclose related party relationship and transaction, authorized and approve the significant transaction and arrangement with the related parties, authorized and approve the significant transaction outside the नॉर्मल कोर्स ऑफ ये जो सारी चीजें हमने लिखी थी प्यारे बच्चों, ये वही सारी चीजें हम रीड करें। तो आप एक चीज इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी होगी, जो लिख रहे होंगे जो पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह कंसिस्टेंट होगा। सही है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल में लिखा होगा, हम यहाँ पे रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन का वर्ड लिखते थे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइन आ रही होगी। सही है, अच्छा उसके बाद शेयरिंग दी related, once the auditor has obtained the understanding of the related party relationship and transaction, auditor shall discuss and share such information with the engagement team। full stop आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे full stop लगा लें, फिलहाल इसको यहाँ तक रीड करते हैं। तो भाई पहले ऑब्जेक्टिव की समरी क्या है? the auditor has obtained the understanding of the related party relationship and transaction by making inquiries with the management and considering the control Q in order to identify and assess the risk of material misstatement as per ISA 315 and ISA 240 का। ISA 240 फ्रॉड का है, रिलेटेड पार्टी से फ्रॉड भी कर सकते हैं लाइक सेलिंग बैंक। सही है, अच्छा तो भाई जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली तो मैं किस पोजीशन पे आ गया? रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे नीचे आपको रिस्क दिख रहे होंगे, लेकिन हमने सारे रिस्क नहीं पढ़े थे। हमने कितने रिस्क पढ़े थे? हमने 2 रिस्क पढ़े थे। मैं सबसे पहले रिस्क पढ़ रहा हूँ, रिस्क नंबर 2, एज पर आइजा 315 सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। ये बात समझ आती है, बिकॉज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ। अच्छा तो इसके अगेंस्ट प्रोसीजर्स क्या करना पड़ेगा? मैं नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूं, जितना मैं पढ़ रहा हूं आपने वही तक फोकस करना है बच्चों और हाईलाइट करना है। फॉर आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस द ऑडिटर शैल, सबसे पहला काम क्या करूंगा? इंस्पेक्ट दी अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट इफ एनी एंड इवैल्यूएट वेदर दी business rationale of the transaction suggest that they may have been entered into engaged in the fraudulent financial reporting। इसलिए मैंने कहा था कि जी एक लॉस था जो कि 200-300 मिलियन का रिकॉर्ड करना पड़ा था, लेकिन रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करके वो 200-300 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड नहीं करा। फ्रॉड की बेसिकली 2 टाइप्स होती है, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसमें मैं कंपनी के एसेट्स को चोरी नहीं करता बल्कि मैं सिर्फ नंबर से क्या करता हूँ ऊपर नीचे करता हूँ और एक गलत पोजीशन दिखाता हूँ। एक फ्रॉड की टाइप होती है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, जहां पे कंपनी के एम्प्लॉइज वगैरह कंपनी का क्या चोरी कर रहे होते हैं, कंपनी के एसेट्स वगैरह को चोरी कर रहे होते हैं। सही है, इंशाल्लाह हम फ्रॉड में पढ़ेंगे। इंस्पेक्ट द अंडरलाइन एग्रीमेंट टू इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल। एग्रीमेंट क्यों देखूंगा? ताकि बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर सकूं। दूसरा काम, द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन एंड द ट्रांजैक्शन हैव बीन appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework which is IFRS, that is IAS 24। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपके? उसके बाद मैं क्या काम करूंगा? obtain the audit evidence that the transaction have been appropriately authorized and क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? तो जो चीजें हमने रिस्क लिखे थे, रिस्क अगेंस्ट प्रोसीजर लिखे थे, उसको मैं एक बार हैंडआउट से डिलीट कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे एक आखिरी रिस्क पे आ रहा हूँ। The transaction with the related party may not have been identified or disclosed by the management. During the auditor shall remain alert when inspecting the records or documents for arrangement or other information that may indicate the existence of the related party relation transaction that the management has not previously identified or disclosed to the auditor। Means management ने सारी की सारी आरपी आपको आइडेंटिफाई भी करके नहीं दी और आपको कम्युनिकेट, तो इसके लिए आप क्या प्रोसीजर करेंगे? बैंक एंड legal confirmation obtained as part of the audit procedure, minutes of the meeting of shareholder and those shall with governance का मतलब board of directors। आप लिख सकते हैं आप TCWG, those shall with governance भी लिख सकते हैं, आप board of directors भी लिख सकते हैं। एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न, कुछ मुल्कों में ये कानून होता है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको बताना होता है कि जो सेल्स आप ऊपर दिखा रहे हैं उसमें से कितनी सेल्स ऐसी हैं जो किसको की है?
रिलेटेड पार्टी को। जो परचेजेस किए, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, बट बाहर मुल्कों में कानून नॉर्मली होता है कि जी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपने बताना होगा कि आपने जो सेल्स का नंबर कोड किया है, परचेज का नंबर कोड किया, उसमें से कितनी सेल्स और परचेज किससे रिलेटेड पार्टी से। एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न देख सकते हैं। शेयर होल्डर रजिस्टर्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर होल्डर, statement of conflicts of interest from management and those charged with governance, record of the entities investment contracts and agreement with the key management or those charged with governance, significant contract agreements that are not in the entities ordinary course of। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रांजैक्शन किसके साथ की गई होगी, रिलेटेड। एक 100 रुपए की चीज 500 रुपए की आपको नहीं बेच पाऊंगा मैं, लेकिन अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई तो इट मे इंडिकेट कि ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, रिलेटेड पार्टी के साथ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो लेफ्ट में मेरे पास रिस्क है, राइट में मेरे पास प्रोसीजर्स है। बेहतरीन। फिर आगे आ रहा है स्पेसिफिक इनवॉइसेस एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर। जब आपने ये प्रोसीजर्स ही परफॉर्म कर लिए, क्यों करे, क्यों करे? ताकि मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी, तो इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक सिचुएशन अराइज हो रही है, सिचुएशन 1। एंड व्हाट इज सिचुएशन 1? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और undisclosed related parties or significant related party. If the auditor identifies related parties or significant related party transaction that the management has not previously identified or disclosed to the auditor shall promptly communicate the relevant information to the other members of the engagement team. Request management to identify all transactions with the newly identified related. Inquire as to why the entity's internal control over the related party relationship transaction failed to enable the identification and disclosure of the related party relationship or transaction. Perform appropriate substantive audit procedure on the newly identified related parties. Reconsider the risk. अपने risk assessment को revise करना। Reconsider the risk that the other related party or significant related party transaction may exist that the management has not previously identified or disclosed to the auditor, and perform the additional audit procedure as necessary. And if the non-disclosure by the management appears intentional and therefore indicate the risk of material misstatement due to fraud, evaluate the implication for the audit as per ISA 240। जब हम ISA 240 पढ़ेंगे, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ये सिचुएशन अराइज कब होगी? जब आपने न्यू रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, और जहां आपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया प्यारे बच्चों, तो आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई। जब आइडेंटिफाई हो गई तो आपने इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों सब क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, लास्ट क्लास में अच्छा मैंने कुछ क्विजेस भी दिए थे आपको, कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और क्विजेस भी दिए थे, आप लोगों ने कर लिया? हाँ जी, क्विज क्यों नहीं किया? अपलोड किया था पोर्टल पे, है क्विज अपलोड हुआ है? पोर्टल का एक्सेस नहीं है ना, आज मिला है। हर चीज मेरी गलती है। हाँ चलें, अब हमने अगले 2 घंटे क्या करना है बैठ के? अब हमने अगले 2 घंटे बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पढ़ा है उसका पास पेपर्स करने हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में कहाँ मसला आ सकता है, किस तरीके से एक वर्ड ऊपर नीचे होगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने बैठ के 1.5-2 घंटा उसकी मेहनत करनी है। आप लास्ट क्लास हमने बहुत डिटेल में सनेट पढ़ा था, आज हमने बैठ के हैंड आउट को एक बार क्विकली, जितना मैंने रीड किया आपने उतना रीड करना है। उसके अलावा आपने डेटा शेयर नहीं करना है, खुदा का वास्ता जितना मैंने आपके साथ रीड किया है आपने सिर्फ और सिर्फ उतना रीड करना है। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, ऑटम 2017 पेज नंबर 75। जी सर। हाँ जी, हम थोड़ी देर बाद ब्रेक ले लेंगे। हाँ जी जी, on the audit of Babur Limited, on the
Audit of Babar Limited. You have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for 6 months was settled by the transfer of securities owned by the BL. Evaluate the above scenario and specify the audit process which needs to be performed. बिलाल तस्वीरें लेके आप ग्रुप में भी सेंड करते हैं ताकि सवाल है उसकी तस्वीर लेके छेती छेती ग्रुप में भी सेंड करें. चले बच्चों स्टार्ट हो जाए. 5 मिनट आपके पास. Obtain and बट किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लूं? रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन. मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी किसकी? रिलेटेड पार्टी एंड ट्रांजैक्शन. तो मैं किससे जाके पूछूं? मैनेजमेंट से पूछूं. तो मैं क्या कर लूं? मैनेजमेंट से पूछने के लिए मैं क्या कर लेता हूं? मैं इंक्वायरी कर लेता हूं. इंक्वायरी विद दी, और मैनेजमेंट से प्यारे बच्चों क्या इंक्वायरी करूं? हाँ जी, कि भाई आप अपने रिलेटेड पार्टी के नाम बता दें. मैं ये नाम लिख रहा हूं लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड में पूरी लाइन लिखी है आपने उसको लिखना है. सही, मैं यहाँ पे प्रिसाइज लिख रहा हूं. उनके साथ क्या बता दें? उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बता दें और उसके साथ जो ट्रांजैक्शन है मुझे वो बता दें. सही हो गया जी. तो मैनेजमेंट तो मेरे पास पता चल गया कंपनी की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है. उसके बाद मैंने फौरन से मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी किस चीज से रिलेटेड थी? 315 का तो नाम ही पूरा ये था ना, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स. मैंने मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करी रिगार्डिंग इंटरनल, कि भाई आपके पास क्या कंट्रोल्स हैं कि आप ये इंश्योर कर सके कि सारी की सारी आरपी आपने आइडेंटिफाई कर ली है, अकाउंट फॉर कर ली है एंड डिस्क्लोज कर ली है. आपके पास क्या कंट्रोल है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन ऑथराइज करता है और जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड थी उसको कौन ऑथराइज करता है एंड अप्रूव करता है. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जैसे ही मैंने ये काम किया, नोट नहीं करना, जैसे ही मैंने काम किया मुझे रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ. मैंने फौरन से एक काम करा प्यारे बच्चों. मैंने क्या काम करा? मैंने फौरन से इस पोजीशन पे आ गया कि मैंने क्या करा? मैंने रिस्क मैं इस पोजीशन पे आ गया कि मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर सका. मैंने पहला रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई किया? हाँ जी, कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी, तो मैं लिख सकता हूं कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी. सही कह रहा हूं? ये मेरा रिस्क नंबर 1 है. और मेरा एक और रिस्क कौन सा था? हाँ जी, आउटसाइड दी, कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी. इस रिस्क के लिए मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया प्यारे बच्चों? मैंने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लिया, मैंने शेयर होल्डर, मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लिया, मैंने कंफर्मेशंस देख ली, मैंने टैक्स रिटर्न्स देख ली है, मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, मैंने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह देख लिए जो डायरेक्टर्स वगैरह के साथ किए थे. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, इसके लिए क्या काम करा मैंने? हाँ, मैंने सबसे पहला काम ये करा, मैंने क्या देखा और एग्रीमेंट देखा क्यों? 3 पर्पसेस के लिए. पहली चीज टू इवेल्युएट दी, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा. दूसरी चीज कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वो कंसिस्टेंट है किसके साथ? मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ. और तीसरी चीज, क्या जो एग्रीमेंट में लिखा गया है क्या उसी को एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया. और फिर एक और प्रोसीजर में कौन सा करता हूं कि क्या वो ट्रांजैक्शन ऑथराइज. क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया. जब मैंने ये काम भी कर लिया प्यारे बच्चों, तो उसके बाद हाँ जी, जब मैंने ये काम करा क्यों? भाई मैनेजमेंट ने मुझे क्या नाम बताया? मैनेजमेंट ने मुझे नाम बताया ए, उसका रिलेशनशिप क्या है? होल्डिंग कंपनी, और क्या करा है आपने? सेल्स. क्या पता है सारी कंप्लीट ना हो, तो आपने ये चीजें देखना स्टार्ट किया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए या फिर एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए. क्या मतलब इसका? या तो आपको कोई बी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए, या ए के साथ से सेल्स नहीं हुई है बल्कि क्या हुई है, ये भी आइडेंटिफाई. इस केस में आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? फौरन से एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेंगे और इसके अलावा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो न्यू रिलेटेड पार्टी है इसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी मुझे बताएं. और इसके अलावा
मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। अगर मैंने एक आरपी आइडेंटिफाई कर ली तो 10 और आरपी भी मौजूद होंगी, तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करूंगा प्यारे बच्चों, रिवाइज करूंगा। मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा कि और भी आरपी हो सकती है, और उसके अगेंस्ट में क्या करूंगा, ऑडिट। जो मैंने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी उसके अगेंस्ट भी मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। और अगर मुझे लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के मुझे ट्रांजैक्शन नहीं बताई तो मैं फ्रॉड की इंप्लीकेशंस देख लूंगा, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। पूरा एक स्टैंडर्ड है। डन हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और इसको हमने रीड भी कर लिया। ठीक है, सवाल ऑटम 17, छेती छेती 5 मिनट। करने और आज इंशाल्लाह एक बड़ी जबरदस्त लर्निंग होगी। चलें छेती छेती। क्या हो गया, क्या कह रही है? ये किताब रेफर करनी है, किताब रेफर करें, कोई मसला वाली बात नहीं है। बच्चों लिखना है यार, देखें टाइम साइन नहीं करना, लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास क्यों है यार, बच्चा इतना लेट क्यों आ रहे हो? हाँ जी छेती छेती। अगर हमने 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास को इफेक्टिवली 3 घंटे जितनी क्वालिटी लेके आनी है, तो इसमें होना ये चाहिए कि जो हमारी अगली क्लास का एजेंडा हो ना, उसको हम एक दिन पहले डिस्कस कर लें और हम लोग घर से पढ़कर आ जाए। ये बड़ा मैटर। देखें जो सवाल आज हमने करने हैं वो आप घर से पढ़कर आए, घर से पढ़ने के बाद उसको अटेम्प्ट कर कर आए, ताकि ये जो सवाल की रीडिंग है अटेम्प्ट करने वाला, ये टाइम हमारा वेस्ट ना हो। इसमें हम अच्छा आंसर चेक कर सकते हैं, एक दूसरे का डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। अभी आप 5 मिनट में करना है, 2 मिनट चले गए, आप 3 मिनट भी जाया करोगे। अगर हम ये कुछ टेक्निक्स प्यारे बच्चों हम कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो कोर्स भी अच्छा कंप्लीट होगा, सुकून से कंप्लीट होगा, और एक 1.5 घंटे की क्लास इफेक्टिवली 3 घंटे जितनी क्वालिटी दे रहा होगा। सही है। तो आपसे हर क्लास में हमने ये करना है कि जो हमारी अगली क्लास का एजेंडा होगा ना, चाहे जो सवाल करने हो या कुछ करना हो, आपने क्या करना होगा, उसको पहले पढ़कर आना होगा। और लाइक ये सवाल वो था जो कि अगर मैं आपको लास्ट क्लास में भी देता कि घर से कर आओ, तो आप कर सकते थे, मसला नहीं था। नहीं भी कर सकते थे फिर आपको पता होता ना कि मसला क्या, तो फिर आज अगर आप क्लास के लिए आ रहे हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं एटलीस्ट। सही, तो हमने ये स्ट्रेटजी रखनी है ताकि 1.5 घंटे की क्लास को हम टेक्निकली या क्वालिटी वाइज हम इंशाल्लाह 2.5-3 घंटे तक पढ़ सके। सेट है। चले जी जल्दी ड्राफ्ट करो। ड्राफ्ट कर दो आपने। लिखा है हमने कुछ आंसर? हाँ क्या, तो पेपर में पूरे मिलेंगे ना फिर। एक चीज फॉर श्योर, गलत लिखे, कंफ्यूजन हो रही है, मसला है क्या, मसला जो कि सर समझ नहीं आ रहा, ये वाला देखे ना। सवाल सवाल क्या था? ऑटम 2015, a schedule of related party transaction provided by the client includes the two significant transactions which are outside the normal course of business. State the substantive procedure that an auditor should undertake in respect of this. एक एक मुझे पता है, जाने मुझे पता है, नशे करता हूँ लेकिन क्लास से पहले नहीं करता हूँ। ऑटम 15 में जो सवाल आया वो सवाल क्या था कि जी एक ट्रांजैक्शन है जो कि क्या है, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके अगेंस्ट मुझे क्या बताते हैं, सब्सटेंटिव। ये एक सवाल था। तो हम
रट के गए होते हैं चीजें। और मैं आपको अभी हम आज की क्लास में इसको प्रूफ करेंगे, बट मैं आपको हल्फन एक बात कहता हूँ। हल्फन क्या था? मेरा उस जमाने में मॉड्यूल डी था, मेरा ऑडिट का पर्चा था, तो ऑडिट के पर्चे में ना आरपी का स्टैंडर्ड सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड तस्वीर किया जाता था। क्यों? उसमें प्रोसीजर ठीक ठाक था। देखे ना, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है। अभी एक दो कॉन्सेप्ट हम और पढ़ेंगे तो और ज्यादा प्रोसेस आ रहे होंगे। तो प्रोसीजर्स ठीक ठाक होते थे। अब जब पेपर में सवाल आता था ना, तो ये समझ में नहीं आता था, याद होते थे लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा लिखना। तो मेरी पहली अटेम्प्ट जब ऑडिट की थी तो मैं फेल हो गया था। जब मैं फेल हुआ ऑडिट की पहली अटेम्प्ट में, तो अगली अटेम्प्ट की जब मैं तैयारी कर रहा था तो रिस्क तो वही था, मसला तो वही था कि भाई अगर वापस से आरपी आया तो मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम आई कैप ने ये वाला सवाल पूछा आरपी से, तो अगर पेपर में सवाल आएगा तो मैं ये वाला प्रोसीजर नहीं लिखूंगा, बिकॉज आई कैप लास्ट टाइम में तो ये हालत होती थी हमारी। और ये आप सोचे इस तरीके से मक्कर बकर करके पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते थे। और अभी ये पता चलेगा, अभी जब हम आज की क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो उससे पता चलेगा। चीजें पढ़ने के लिहाज से लिखने की क्लास बड़ी जबरदस्त है, बट अभी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, इसको पास्ट पेपर देखना स्टार्ट करेंगे, और एक चीज हम देखेंगे जो CFEP में आज से 2-3 साल पहले पूछे गए ना, वो अब कैट में पूछ रहे हैं एग्जैक्टली सेम सवाल। ये आज इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। इन चीजों को भी देखता हूं इंशाल्लाह। अब एक सवाल तो आ गया, कितने बच्चों ने, अच्छा भाई ये डायग्राम बनी हुई है ना, किताब भी है आपके पास, क्या है इसका आंसर? आउटसाइड दी। तो इसका आंसर है यहां से लेके यू भी आसान है, यू भी आसान है ना भाई, ये भी आसान है कि हम इसको यूं डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर यहां से लेके यहां तक ये, बट हमने इस तरफ पढ़ना नहीं है, सही है। जिसने यूं लिखा ना उसको 3, 3.5, 4 मार्क्स मिलेंगे। जिसने ये, अच्छा आंसर ये है, आंसर ये है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, आंसर ये है, सही है। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? इवेल्युएट दी अबव सिनेरियो एंड स्पेसिफाई दी। सवाल की दो रिक्वायरमेंट है, सवाल की एक रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एंड का वर्ड यूज हो रहा है। तो पहले आपने इवेल्युएट करना है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई दी ऑडिट प्रोसीजर्स। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिलाल हमेशा याद रखिएगा, इवेल्युएशन के लिए है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले हाईलाइट करना है उस चीज को जिसके अगेंस्ट कोई इवेल्युएशन एग्जिस्ट करती है, ऐसा ही है भाई। और जब मैं इवेल्युएट कर लूंगा तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा कि मैं उसके अगेंस्ट क्या बता सकूं? ऑडिट प्रोसीजर्स बता सकूं, कोर्स ऑफ एक्शन बता सकूं। बड़ा आसान, बड़ा स्ट्रेट है, ड्राफ्टिंग में बड़ी क्लियर है। देखें मैं सवाल पढ़ता हूं, सवाल में लिखा हुआ है ऑन द ऑडिट ऑफ बाबर लिमिटेड you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company which was overdue for was settled by the transfer of securities owned by। सवाल में सबसे बड़ा मसला क्या है कि आरपी का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन आंसर आरपी से। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? जब सवाल आया है तो आंसर कहां से होगा? आइजा से। तो भाई कौन सा वाला आइजा, ये मालूम करना जरूरी है ना। तो भाई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी कौन होती है? इवेल्युएट करें इवेल्युएशन में, तो होल्डिंग कंपनी इज द रिलेटेड पार्टी। आप समझ रहे, पूरा एक माहौल बनाना है इवेल्युएशन में ताकि मैं उसको बता सकूं कि मैं आइजा 550 से इसका आंसर लिख रहा हूं, सही है। मैं अपने लेक्चर में ये आइजास के वर्ड यूज कर रहा हूँ, सही है। और ऑब्जेक्टिव था, आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन क्या हुई है? लोन ऑब्टेन किया था, सही है। 6 महीने तक ये क्या रहा? लोन ओवरड्यू रहा, और मैंने इसको सेटल कैसे किया? सेटल कैसे किया? सिक्योरिटीज बेच के। ऐसा कुछ करा है मैंने, सिक्योरिटी सेटल। क्या नॉर्मली आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, इस तरह ट्रांजैक्शन होती है? अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता प्यारे बच्चों, तो क्या बैंक इस तरीके से ट्रांजैक्शन मुझे करने देता है? 6 मिनट तक आपसे पूछ भी नहीं रहा, पैसा लेके बैठे रहो, बाद में कह रहे हो मेरे शेयर्स ले लो या उसके शेयर्स। इट मींस ट्रांजैक्शन जो ये हुई है, आप समझ रहे हैं, ये किस चीज की इवैल्यूएट करता है? आउटसाइड दी। तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है प्यारे बच्चों, वो किस टर्म्स में है? वो आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। देयरफॉर ऑडिटर shall perform the following
ऑडिट प्रोसीजर, और मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले इंस्पेक्ट दी, देखिए प्यारे बच्चे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया है ना, तो फिर एग्रीमेंट ना लिखें, फिर लोन एग्रीमेंट लिखें, फिर लोन रीपेमेंट एग्रीमेंट लिखें। कुछ ये कॉमन सेंस है ना। देखिए जब ऑटम 15 में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं पता था ट्रांजैक्शन क्या है, तो मैं वही चीज कॉपी पेस्ट कर रहा था। बट अगर पेपर में बता रहे आपको लोन लिया है और लोन रीपे हुआ है, तो आप भी कोशिश करें ना, साथ में क्या लिख दें? इंस्पेक्ट दी लोन एग्रीमेंट। क्यों क्यों एग्रीमेंट देख रहे हैं भाई? क्या शौक हो रहा है एग्रीमेंट देखने का? इवेल्युएट दी, सही है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन कंसिस्टेंट है किसके साथ, और क्या ये ट्रांजैक्शन जो लिखी गई है वो वैसी ही डिस्क्लोज हुई है, और क्या इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज्ड एंड अप्रूव किया है। अब आप लोग ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैं पहले माहौल बना रहा हूं, मैं पहले उसको बता रहा हूं कि इस वर्ड की वजह से मैं ये वाला एज अप्लाई कर रहा हूं, और ये जो आपने सवाल में लाइन लिखी है ना, देख सुनिएगा, सिर्फ इस वर्ड की वजह से मैं कौन सा आइजा अप्लाई कर रहा हूं? आइजा, बट आइजा 550 तो इतना बड़ा है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर, लेकिन जो सवाल में आपने मुझे ट्रांजैक्शन बताई है दैट इंडिकेट दी, तो इसलिए मैं कौन से प्रोसीजर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों? इसलिए मैं आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर। यहां तक बात आपको समझ आती है? तो दोस्त इस तरीके से हमने स्टार्ट करना होगा और इस तरीके से उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ पॉइंट छाप के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ पॉइंट छाप के आएंगे प्यारे बच्चों तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब वो आपसे कह रहे हैं, देखिए ना, कोई तो रीजन होगा कि यही सवाल 4 नंबर का पूछ रहा है वो ऑटम 15 में, और 2 साल बाद 6 नंबर का पूछ रहा है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आप एक सवाल जो ऑटम 15 में आपसे कितने नंबर का पूछ रहा है? 4 नंबर का, वही सवाल आपसे तो कुछ एडिशनल पूछना चाह रहा होगा ना आपसे, यार कुछ एडिशनल चीजें समझ। आपको पता है सट्टा में बच्चों ने क्या करा था? लोन पेबल का वर्ड आ रहा है, तो लोन पेबल के नाम से ऑडिट प्रोसीजर्स है हमारे स्टेट टैक्स में, बच्चे लोन पेबल के ऑडिट प्रोसीजर्स लिख के आते हैं। आप लोग यूं ना कहें कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने नहीं लिखे। आपने इसलिए नहीं लिखे, हमें पढ़े नहीं है, और हम आरपी पढ़ रहे तो जाहिर सी बात है आंसर भी आरपी से ही हो रहा है। सही है ना? तो ना मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग इतने अच्छे हैं। दी ओनली रीजन है हम आरपी से पढ़ रहे हैं तो आंसर भी आरपी से होगा। लेकिन जब सारी चीजें पेपर में आती है और मिक्स करके आती है तो बच्चे, पेपर का सबसे बड़ा मसला 2-3 सवालों में क्या होता है पता है? बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सा टॉपिक अप्लाई है। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं, फिर टॉपिक क्लिक भी हो जाएगा, ये टॉपिक अप्लाई हो रहा है, तो फिर टॉपिक में कौन सा आंसर अप्लाई हो रहा है, ये वाला। तो अगर आप लॉजिकली साउंड नहीं होंगे ना, और जब तक आपको आइजाज की लिंकिंग नहीं पता होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लिखना, पढ़ना और समझना। प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, किसी को कोई सवाल? हाँ जी, ये वो पूरी लाइन बिल्कुल लिखेंगे, पूरी लिखेंगे। मैं यहाँ पे प्रिसाइज लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, लाइक पेपर में आपने बियॉन्ड नहीं लिखना, बिजनेस रैशनली लिखना जी। एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्यों की जाएगी? क्यों बताओ ना? एक 200 रुपए का शेयर क्यों 500 रुपए का बेचा था? क्योंकि लॉस छुपाने के लिए। तो बिजनेस रैशनल के कहीं इससे कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही उस चीज को इवैल्यूएट करने। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है सबके? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, वॉल्यूम 2, छेदी छेदी, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 96। सब आ गए प्यारे बच्चों? पेज नंबर 96 में सब आ चुके हैं? बिलाल साहब वही तस्वीर खींचे ग्रुप पे भेजते रहे यार। अब देखिए मैंने लिखा क्या है, होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हु कंट्रोल्स द रिपोर्टिंग एंटिटी, देयरफॉर एज पर IS 24 इट इज द रिलेटेड पार्टी ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो मैंने तो उसको कहा ये इन्वेंशन भाई तो रिलेटेड पार्टी है। फिर अगले पैराग्राफ में मैंने क्या कहा? द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन विद इट्स related party holding company where a loan payable was overdue for 6 months, however settled by transfer of securities owned by the PL. The transaction seems to be outside the normal course of business, therefore auditor shall perform। और फिर मैंने वो पॉइंट छापा, बट जो ऊपर जो कहानी लिखी है, माहौल लिखा है, आप समझ रहे हैं? सबसे पहले मैंने जहां रिलेटेड पार्टी का वर्ड लिखा आइजा 550 ट्रिगर करा, जहां आइजा 550 ट्रिगर करा मैंने कहा अब मैं क्या लिखूं? अब मैं क्या लिखूं? तो मैंने कहा ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी
आउटसाइड की। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, एक पूरा जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा प्यारे बच्चों आंसर का तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, और इसमें आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि स्टार्ट कहां से करना है। दोस्त कुछ बेहतरीन हुई, तो आपने हमेशा ये देखना है और ये चीज सीखनी है। देखिए इस सवाल को पढ़ने का एक आसान पर्पस ये भी था कि मैं आपसे ये कह देता जिसका आंसर यहाँ से लिखिए, ये पर्पस सर्व नहीं करेगा। सुन ले मेरी बात, आपका पर्पस सर्व नहीं करेगा। वैसे तो आसान हो जाएगा, हमने 10 सवाल कर लिए, हम 4 सवाल करेंगे आज, लेकिन क्वालिटी सवाल करेंगे यहाँ तक। और आगे जाके जब हम एक सवाल कर रहे होंगे तो वो टेक्निकली 4 सवाल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज उसके 4 किस्म के आंसर्स बनने होंगे। मैं और आप बैठ के बहस कर रहे होंगे कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ये वाले प्रोसेस की, तभी तो आगे जाके बहस होगी हमारी। और बहस क्यों हो सकेगी, बिकॉज आप इतना शऊर रखते होंगे चीजों के ऊपर कि आप इंशाल्लाह बहस कर पाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, हमने क्या काम कर लिया, हमने हैंड आउट रीड कर लिया। हमने एक और काम क्या कर लिया, डायग्राम मैंने और आपने मिलकर बैठ के बना ली। एक और हमने काम क्या कर लिया, सवाल आपने ड्राफ्ट कर लिया, मैंने कुछ आंसर चेक कर लिए और इसकी ड्राफ्टिंग सीख ली। आंसर रीड भी कर लिया, बट उस रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमने उसकी ड्राफ्टिंग सीख ली। अब हम 10 मिनट का नमाज का ब्रेक ले रहे हैं और 10 मिनट बाद हम मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़े से और मुश्किल लेवल के सवाल हम करेंगे। और सवाल कुछ ऐसे होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल। क्यों? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होंगे, क्यों? तो सवाल इतना ऐसा होगा कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैंने प्रोसीजर कौन सा लिखा। और मैं आपको चैलेंज करूंगा, ओपन बुक पॉलिसी है, मुझे सही आंसर लिखो। ओपन बुक पॉलिसी किताब आपके सामने, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे आप अटेंड करें। डन हो गया प्यारे बच्चों? चलिए 10 मिनट इंशाल्लाह मिलते हैं फौरन से, छेती छेती। ऑटम 2018 11 नंबर का सवाल आया है, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 75। चले जी, ऑटम 18 पेज नंबर 75 वॉल्यूम 1। Imran is the audit senior. Imran is the audit senior responsible for the audit of PGL. During the audit, he noticed that PGL made significant transactions with requirement. State the audit procedures which should be performed to check whether all the related parties have been disclosed. So, पहला सवाल। Part B, what steps should Imran perform if he identifies any related party transaction which were not identified and disclosed by the management? Part A और Part B 11 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चे, एक आसान सवाल था, इस पे अटेम्प्ट का 5 मिनट है आपके पास, लिखना स्टार्ट करें प्लीज, छेती छेती। डायग्राम आपके सामने, किताब आपके सामने, किताब देख के लिखना है, यहाँ से देख के लिखना है, बस लिखें यार प्लीज। सिनेरियो सही पिक करें, सोचें और फिर लिखना स्टार्ट करें। बेस क्वेश्चन है यार, तो आसान है ना। पेज नंबर बताओगे मुझे, तो छोड़ो। Imran is the audit senior responsible for the audit of PGL. During the audit, he noticed that PGL made significant transactions with the state the audit procedures which should be performed to check whether all the related parties have been। आप ऐसा क्या प्रोसीजर करेंगे जिससे आपको ये एविडेंस मिल जाए कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज है वो सारी की सारी मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज कर दी है।
हाँ जी, कंप्लीटनेस ऑफ दी आरपी, जो मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी है या डिस्क्लोज करी है, क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है, तो उसके आगे आप क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखेंगे, आप शेयर होल्डर रजिस्टर देखेंगे। वो आपने जो लिखा था सही लिखा था, बट आप कोशिश करें ना कि उसको बुलेट वाइज लिखे ना। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर सारा आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5-6 बुलेट्स अगर आपके आ रही होंगी, ऊपर एक पैराग्राफ आ रहा होगा, like the auditor shall perform the following audit procedure in order to ensure that all the related party have been communicated or disclosed to the auditor by the management, और फिर आप बुलेट वाइज में वो सारे प्रोसेस परफॉर्म करते हो, वो नेक्स्ट सेंस होगा। समझ आ रही है आपको? जी सर। हाँ, एक हर पॉइंट का 1 नंबर होगा। साइड हो गया। अगला क्या है, वो कह रहा है कि जी अगर आपने एक काम कर लिया और ये काम करने के बाद अगर आपने कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली तो फिर बताएं अब क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? तो मैं प्रॉम्प्टली एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे प्रोसेस को मैं मेंशन करूंगा। एक कंपैरेटिवली प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान सवाल था। इस टाइम में जो होता है ना थ्योरी बेस्ड, तो ये वो थ्योरी बेस्ड था जो कि 15-20 नंबर का है, जिसमें 11 नंबर उसने आपके से पूछे थे। समझ आ रही है आपको यहाँ तक? अब मसला क्या है? कोई अच्छा कोई सवाल? जी सर। हाँ नहीं, बात बात क्या है, देखें बात यह है कि आपको एक ट्रांजैक्शन पता चली है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ आरपी के साथ और भी ट्रांजैक्शन हुई है। भाई मैं एक चीज गलत पढ़ा दूं आपको, आप मेरे पास आए सर आपने गलत पढ़ा दिया, मैं कहूंगा ठीक है यार सॉरी। आप मुझसे कहेंगे ना सर अब मुझे बताएं आपने और क्या क्या गलत पढ़ा है। सही है, तो अगर एक ट्रांजेक्शन आपको पता चल भी जाए तो फिर भी आपने उससे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन हुई है, तो काइंडली वो भी आप मुझे मुझे कम्युनिकेट करें। ठीक है बच्चों? अच्छा हाँ, नहीं अब आपके पास एक एविडेंस आ चुका है ना, अब आपके पास एक एविडेंस आ चुका है कि आपने आरपी आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर उसे पहले नहीं बताई, अब क्यों बताएगा? तो आप भूल रहे हैं ना एक चीज भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? फ्रॉड। अगर आपको लगता है जानबूझ के नहीं बताई, तो इस आयजा में हम पढ़ेंगे कि इसकी इंप्लीकेशन इतनी खतरनाक है। विड्रॉ, आप एंगेजमेंट से विड्रॉ करो। विड्रॉ का मतलब समझते हो? आप उसको बोलोगे मैं तुम्हारी कंपनी को ऑडिट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब समझ आता है क्या? कि मैं आपकी कंपनी का, तुम करके दिखा दो एजीएम। भाई एजीएम में तो ऑडिटेड अकाउंट्स आने हैं ना, तब करके दिखाओ एजीएम। फिर एसईसी भी पकड़ेगा। अच्छा पीडब्ल्यूसी नहीं कर रहा तो कौन कर लेगा? भाई एवाई कर लेगा, केपीएमजी कर लेगा, यूसुफ आदिल कर लेगा, जीटी कर लेगा। नहीं, वो लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेक्शन है जो कि कहता है कि जी अगर पीडब्ल्यूसी ने लैंड से विड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये कंपनी किसको अप्रोच करेगी? केपीएमजी को। केपीएमजी को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट केपीएमजी को परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? कि भाई कोई ऐसी रीजन है आपके पास जिसके बेसिस आपको लगता है कि मुझे ये क्लाइंट का ऑडिट नहीं करना चाहिए, और वहां पे केपीएमजी इसको क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे फ्रॉड के मसले और यहाँ पे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, केपीएमजी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ आ रही? तो ये इंशाल्लाह पूरी पिक्चर आगे जाके, और तो ऐसे नहीं कि पहले भी नहीं बताया तो अब भी नहीं बताएगी, तो ना बताया भाई तो मैं तो विड्रॉ कर दूंगा। बात आप समझने की कोशिश करें, मैं उसके ऑफिस नहीं गया कि मुझे ऑडिट दो, उसके उसके शेयर होल्डर ने मुझे अपॉइंट किया एजीएम में कि जी आप हमारे ऑडिट बने, और उससे ऑडिटर से कंसेंट ली जाती है कि भाई आप राजी हैं हमारे ऑडिटर बनने के लिए। समझ आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा तो आपके पास कुछ भी नहीं, आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। कौन मीडिएटर यार? कोई पुप्पी की बेटी थोड़ी आएगी अब मीडिएटर के तौर पे। हाँ, केपीएमजी एक्सेप्ट कर ले, केपीएमजी बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले। अगर केपीएमजी को लगता है ठीक है तो केपीएमजी बिल्कुल एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, लेकिन देखिए केपीएमजी जब एक्सेप्ट करेगा तो उसको ऑडिट करना किसके हिसाब से होगा? आयजा के हिसाब से। और अगर उसको फ्रॉड की इंडिकेशन दिखती है तो वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो उस ऑडिट का क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, जेडीडब्ल्यू का आप देखें ना क्या मसला हुआ। हाँ
विड्रॉल प्रैक्टिकली सबको पता है ना, हमें हमारे ऑडिट कैसा होता है क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई मीन कुछ एंगेजमेंट ऐसी भी होती है जिसमें विड्रॉल होता है, कुछ एंगेजमेंट्स ऐसे लाइक कॉल मैट का आप लोगों को पता है सीन क्या होता है। कॉल मैट में बेचारी कॉल मैट रजिस्टर्ड होने जा रही थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो भाई जब रजिस्टर्ड होने जा रही है तो दिखाएगी ना भाई कि मेरे ये प्रॉफिट्स हैं, मेरे ये रिजर्व्स हैं, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से आईपीओ वगैरह करना था, पैसा कलेक्ट, तो पैसा किस बेसिस पे आएगा, जब वो दिखाएगी कि भाई मेरे पास ये नंबर्स हैं। पीडब्ल्यूसी ने कहा ये नंबर गलत है, अब पीडब्ल्यूसी 15 साल से ऑडिट कर रहा था, अब पीडब्ल्यूसी कॉलमेट ने करा क्या, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसने करा क्या, जो उसके कार्ड्स होते थे वो किसको बेचता था, वो ये सारे कार्ड्स इसने बेचे एक एजेंट को। तो मैंने 100 मिलियन कार्ड्स इसको बेचे एजेंट को, और एजेंट आगे कस्टमर को पता नहीं कब बेचे, बट मैंने 100 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। ये कहानी चल रही थी, तो फर्गसन ने बोला कि भाई ये तो रेवेन्यू है नहीं, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो सेटिस्फाई, तो एजेंट है, ये एज अ प्रिंसिपल थोड़ी है, तो ये तो ऐसा एजेंट काम कर रहा है, तो जब तक अल्टीमेट कस्टमर को नहीं चला जाएगा और वो स्क्रैच नहीं कर लेता या वो पैसे नहीं दे देता, तो आपके पास तो पैसा भी नहीं आया इस चीज का। सारी बहसबाजी चलती रही। आपको पता है हुआ क्या था, कॉलमेट की मैनेजमेंट ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईओजीएम, वहां पे इनको फारिग किया और किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया। पीडब्ल्यूसी भागा किसके पास, एनसीसीपी ने कहा ये जो ईओजीएम हुई है इसके डिसीजन को मैं नल एंड वॉइड करता हूँ, और पीडब्ल्यूसी ऑडिटर रहेगा, और पीडब्ल्यूसी ऑडिटर रहा, और एट द एंड हुआ क्या कि 30-40 रुपए का शेयर 2 पैसे पे आ गया और कंपनी बैंक है। समझ आ रही है आपको, आपके समझ आ रही है बात। तो ऑडिटर के अब वो अलग बात है हम उसको यूज करते ही नहीं करते हैं, वो हमारी अपनी इंटेग्रिटी, हमारी अपनी एथिकल वैल्यूज, बट ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, स्प्रिंग 2015, पहले सवाल सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, सिर्फ रीड करूंगा। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी KL Volume 1. Prior to the completion of audit, you came across a prospectus issued by the Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by the KL. On being confronted, the management has advised that the name was mistakenly omitted mistakenly as the appointment took place just 2 months prior to the, एक कंपनी की रिलेटेड पार्टी थी, 2 महीने पहले आरपी बनी वो, और उसका नाम रिलेटेड पार्टी की लिस्ट में नहीं आ रहा। बताएं अब आप क्या करेंगे। हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्कस योर कोर्स ऑफ एक्शन इन द अबव सिनेरियो। हाँ जी भाई, यू ना कहना एंड वाले प्रोसीजर यार, मतलब आप बताएं ना सिनेरियो क्या है, सिनेरियो तो बताएं मुझे, दोस्त आप बताएं सिनेरियो क्या है। एज एन ऑडिटर आपने नीलम लिमिटेड एक आरपी आइडेंटिफाई करी है, जो कि मैनेजमेंट ने वो खुद कह रही है कि इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी। जो मैनेजमेंट ने आरपी की लिस्ट आपको प्रोवाइड करी थी उसके अंदर ये रिलेटेड पार्टी नहीं मौजूद थी, ये आपने आइडेंटिफाई करी, और आपने कैसे आइडेंटिफाई करी होगी, ये इट मींस जब आपने रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कि अगर नीलम है तो फिर झेलम भी हो सकती है, कोई और रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है। तो ये सारे प्रोसीजर्स प्यारे बच्चों आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आता है। अगेन एक सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये भी, लेकिन मसला क्या है, अगर हम इस तरीके के सवाल देखेंगे ना तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। क्यों? बिकॉज ऑटम 17 से पहले तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आई नहीं था, ऑटम 17 से ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ है सिनेरियो बेस्ड का। तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स को मैं देखूं, अच्छा ऐसा भी नहीं कि हर अटेम्प्ट में आरपी आता होगा, सही है। तो अब मेरे पास क्या है, अब मुझे अगर मजीद प्रैक्टिस करनी है किस चीजों की, अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम 2 में जाना पड़ेगा। और वॉल्यूम 2 में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, कौन से वाले, सीएफएफ सीए फाइनल के। तो क्या हम वॉल्यूम 2 में आ जाए प्यारे बच्चों? अच्छा जी, छेती छेती आ जाए वॉल्यूम 2 में। पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों सब आगे पेज नंबर 95 पे, विंटर 2016 विंटर। और जब मैं आपसे सीए फाइनल के सवाल डिस्कस कर रहा हूं तो ये हमें पता है कि फाइनल में ओपन बुक पॉलिसी है ना, किताब लेके जा सकते हैं, सही है। तो सीए फाइनल में एक सवाल आया है, कितने नंबर का सवाल आया है? 9 नंबर का सवाल आया है। सवाल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 लाइन की, और रिक्वायरमेंट बड़ी आसान है, क्या? इवेल्युएट दी एंड डिस्कस दी कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। एक ही सिचुएशन है। आप फाइनल के जितने भी सवाल देखेंगे ना, सवाल 1 लाइन का आता है, और सवाल आता है क्या? इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन, डिस्क्राइब दी। आप जितने सवाल फाइनल के हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, उसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, क्या? इवेल्युएट दी अबव। और सेम सवाल, अब सेम रिक्वायरमेंट का ट्रेंड कहाँ फॉलो हो रहा है? कैफ में। कैफ का भी अगर आप सवाल देखें, बॉटम 17 वाला सवाल सेम था, इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन एंड सजेस्ट द ऑडिट प्रोसीजर। इस सवाल को हम पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, MEL, which provides mechanical parts to the different industries. आगे का पैराग्राफ में नहीं पढ़ा, सही है। Presently following matters are under your consideration. पार्ट ए हमारा नहीं है, पार्ट बी हम पढ़ रहे हैं। During the year, the company has sold one of its building to Natasha Private Limited at a loss of rupees 20 million. The building was purchased at a cost of rupees 80 million 7 years ago and was depreciated at the rate of on a straight line basis. The minutes of the meeting of the board of directors at which the sales was approved indicate that a director of the company holds 20% shares in the Natasha Private Limited. However, the minutes also indicate that he did not vote on the transaction due to conflict of interest. ये एक सवाल है, और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? Evaluate the above situation and describe the course of। सवाल बड़ा सिंपल है, क्या है? आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मैकेनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका बिजनेस है कि वो मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह सेल करता है सारी इंडस्ट्री को। उसने अपनी बिल्डिंग बेच दी किसको? नताशा। और कितने में बेची? 20 मिलियन के लॉस में बेची। जो कि इसने 20 मिलियन के लॉस में बेची, तो आपको पता चला कि भाई नताशा कि जो इस कंपनी का डायरेक्टर है उसकी तो 20% होल्डिंग है। कहां पे? कौन सी दोनों पार्टीज कौन सी है? एक रिलेटेड पार्टी समझ आ रही है, सही है। अब वो कह रहा है कि इवेल्युएट द कोर्स ऑफ इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। ये एक सवाल है प्यारे बच्चों, ये सिनेरियोस आपके सामने, सही है। 10 मिनट दे रहा हूं, मार्क्स को सामने रखिएगा, मार्क्स को सामने रखिएगा। 10 मिनट दे रहा हूं, मुझे इसका एक अच्छा करेक्ट आंसर चाहिए, छेती छेती। जिस डायरेक्टर की होल्डिंग थी ना, उस डायरेक्टर ने इस ट्रांजैक्शन, जब बोर्ड ने इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव की होगी, तो इस ट्रांजैक्शन में उस बंदे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट था ना। इस सवाल को आई वुड सजेस्ट कि अटेम्प्ट करने से ज्यादा 3 मिनट, और 3 मिनट को बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूट करें। 3-4 मिनट ले लें, 5 मिनट ले, 3 मिनट तक बैठ के सवाल पढ़े। जितना मैंने आपको रीड करा है, सुकून से बैठ के सवाल को पढ़ते रहे, सही है। उसके 2 मिनट बाद, उसके 2 मिनट बाद आपने क्या करना है कि इस सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन कौन से सिनेरियोज अप्लाई हो सकते हैं, आपने ये सोचना। और जब आप ये सोच लेंगे और एक आंसर को ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे, फिर लिखना मुश्किल थोड़ी है, लिखना तो 5 मिनट में हो जाएगा। सोचे आराम से, लिखने ज्यादा अब आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट होगा प्यारे बच्चों? सोचने में कि इसका आंसर कहाँ, ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला क्यों होगा। डन हो गया? छेती छेती। हाँ जी, आसान है सवाल, आसान है। क्या सिनेरियो है बताओ? हाँ जी, आउटसाइड दी
दोनों आ रहा है। ये कहाँ लिखा हुआ है न्यू रिलेटेड पार्टी है? ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि आपने आपने आइडेंटिफाई करी है। भाई देखे ना, हमने इससे पहले कौन सा वॉल्यूम 1 में आए, स्प्रिंग 15, ये वाला सवाल था भाई। वॉल्यूम 1 में आए स्प्रिंग 15, पेज नंबर 75। छेती छेती, चले टाइम नहीं है, किताबें ले लो ना यार, क्यों नहीं ले रहे? नहीं है? अच्छा, स्प्रिंग 15, यू आर दी audit manager on the audit of a listed company, Camel Limited. Prior to the completion of audit, you came across a prospectus issued by the Neelam Limited, according to which a director of KL is the chief executive of NL. However, the name of NL was not included in the list of related parties provided by the, कितना कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि भाई मैनेजमेंट ने इस रिलेटेड पार्टी का लिस्ट, रिलेटेड पार्टी का नाम लिस्ट में इंक्लूड, कितना कैटेगोरी, तो आपने कहा कि भाई ये तो आरपी आपने आइडेंटिफाई करी है, शराफत से ये क्वेश्चन परफॉर्म करें। सही है। अब सवाल पढ़ते हैं हम, वॉल्यूम 2 विंटर 2016 है, विंटर 2000, उसमें तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई करी है। भाई अब्दुल्लाह सही कह रहा हूं ना, इसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ ऐसी लाइन के आपने आइडेंटिफाई करी है। तो भाई क्या लिखो फिर इसमें से, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जबरदस्त। तो मैं कहता हूं अगेन वही टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्या हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको क्या करते हैं, और जहां हमने करेक्ट वर्ड इवेल्युएट कर लिया, फिर उसके अगेंस्ट जो ऑडिट प्रोसीजर्स बताए गए हम वो लिख लेंगे। आसान है बड़ा, सही है। तो सवाल में लिखा हुआ है, ये कैसे पता चला कि ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? तो कंपनी का बिजनेस बताया गया है। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस क्या है? मैकेनिकल पार्ट सेल करना। क्या ट्रांजैक्शन इसमें हुई है? नहीं। ट्रांजैक्शन किसमें हुई है? सेल ऑफ बिल्डिंग। अब लॉस हो ना हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज कंपनी का बिजनेस बिल्डिंग बेचना थोड़ी था। हाँ, कंपनी का बिजनेस बिल्डिंग बेचना होता और कितने में लॉस में ही होता, इट मींस टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट कंसिडर्ड विद द मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं उसको फिर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लेके जाता। मैंने कहा भाई मैकेनिक, तो भाई बिजनेस ये है, आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा एक और चीज, ये सेल ऑफ बिल्डिंग बेची किसको है? नताशा लिमिटेड को। नताशा लिमिटेड में आपके डायरेक्टर की कितनी परसेंट होल्डिंग है? इनमें से कौन सी हो गई? तो आपने कहा इसकी वजह से ये क्या है, इवैल्यूएशन में क्या लिखा आपने? रिलेटेड पार्टी। और जो ट्रांजैक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी के साथ, ये क्या है? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग। सेंस बनता है ना इसका, इस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा ना मैं कि भाई the director of the company holds 20% shares in the Natasha Limited, therefore this is the related party of a company, and the business of the company is to sell the mechanical parts. However, the transaction that was taken with the related party was outside the normal course of business, therefore auditor shall perform the following audit procedure: inspect the underlying sale of building agreement to evaluate the business rationale of the transaction, to ensure that terms and conditions that is mentioned in the agreement are consistent with the management explanation, and whether the terms and conditions that are mentioned in the agreement are adequately disclosed in the financial statement, and to check that whether the transaction is authorized and ये कितने लोगों ने ये लिखा? जबरदस्त। मसला ये है कि सवाल 9 नंबर का है, आपको तो मैक्सिमम 5 मार्क्स मिले। ये हाँ,
सवाल में ये क्या लिखा है कि भाई आपने आइडेंटिफाई करी है? नहीं लिखा तो मैं एज्यूम कर लूं है? इस पूरे आधे पेज के सवाल में सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिससे ये कंक्लूड हो रहा है कि दैट रिलेटेड पार्टी वाज आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। ढूंढे वो वर्ड, इंसानों की तरह ढूंढे, जल्दी, छेती छेती। है द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ, ऑडिटर ने क्या देखा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा, तो उसने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये ट्रांजैक्शन तो किसके साथ हुई है? इट मींस ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ने आपको यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करी थी। ये देखता क्यों हूं मैं? तो जब ये देखा मैंने तो मुझे एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई जिसको प्रीवियसली मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट नहीं करा था। तो मैं क्वेश्चन में लिखूंगा कि मुझे रिलेटेड पार्टी कैसे पता चली? बाय इंस्पेक्टिंग दी मिनट्स ऑफ द मीटिंग। इवैल्यूएशन में क्या लिखूंगा कि दिस रिलेटेड पार्टी वाज या इज आइडेंटिफाइड, अरे बच्चों, आइडेंटिफाइड बाय दी which was not previously communicated / disclosed by the management to the audit. Therefore auditor shall perform the following audit procedure. दोनों लिखे थे ना? तो सही लिखा है ना? हाँ, 4 ऑप्शन है, तो 2 आंसर है ना, 2 का स्क्वायर 4। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों सही है? अच्छा दोनों सही है। हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, दोनों गलत है, दोनों सही। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपने पॉसिबिलिटीज और बनानी है तो ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये भी प्रोसीजर्स है, ये 4 प्रोसीजर, 4 का स्क्वायर, देयर आर 16 पॉसिबिलिटीज। देखें ना कितना मुश्किल होता रहेगा, लेकिन जो जो लॉजिकली साउंड होगा ना, ये प्रैक्टिस से पता चलता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। दोनों लिखने हैं। आपका नाम? मनीष कुमार। मनीष कुमार साहब, दोनों लिखना है। सवाल कितने नंबर का है? 9 मार्क्स का है। अगर उसने आपसे सीए फाइनल में 9 नंबर, कैफ में वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बेसिस 4 नंबर का 6 नंबर का पूछ रहा है, आप इतने अच्छे का फाइनल में ये सवाल आपसे 9 नंबर का पूछेगा, और वो भी ओपन बुक पॉलिसी। आपको पता है, सुनिएगा मेरी, बड़ा जरूरी है, सुने मेरी बात, सुकून से सुने। सर ये क्या बात हुई कि ओपन बुक पॉलिसी है और बच्चे ने पूछा छापने थे, लेकिन बच्चा नहीं छाप सका। क्यों नहीं छाप सका? उसको पता ही नहीं था कि सिनेरियो कौन सा आया है। बिजनेस बताया गया है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी, ये इवैल्यूएट करके आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रोसीजर, प्लस एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता चला है कि भाई, तो इट मींस ये आपने देखा तो पता चला ना, तो देखा क्यों था? to identify the new related party। तो जी it means that related party was identified by the स्प्रिंग 15 वाला सवाल भी आपके सामने है, विंटर 16 वाला सवाल भी आपके सामने है। ये समझने की कोशिश करें, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इज कि जहां पे वो कैटेगोरिकली आपको कहता है कि भाई रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी, और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे आपने सवाल पढ़ के रीड करना होता है कि जी इसके अंदर कौन कौन से सिनेरियो एप्लीकेबल हो रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो हमारा जो आंसर होगा वो ये आंसर भी है, वो ये आंसर भी है। मनीष आप क्लियर है बेटा? आपको क्लियर हो सारे? कितने लोगों ने दोनों आंसर लिखे थे? इसलिए कि 9 नंबर का था। कितने लोगों ने, देखिए आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सबने पिक कर लिया था ना, ये तो आसान था। कितने लोगों ने ये पिक करा कि चूंकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वर्ड लिखा हुआ है? जबरदस्त यार। और जो मिस नहीं कर सका, परेशान ना हो, ये प्रैक्टिस से पता चलती रहेगी। और अगेन मैं आपसे कहता हूं, जब तक आइजा का स्ट्रक्चर मुझे क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आइजा, एक और कॉमन सेंस वाली बात, तो ये देख लिया ना, तो इट मींस अब जो चीजें लिखनी होंगी वो आगे की लिखनी होंगी, पीछे भी थोड़ी लिखेंगे हम। तो पॉसिबिलिटी में तो इसको तो इग्नोर ही मार दें।
जब आप परफॉर्मेंस फेज में बैठ के मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख चुके हो, तो अब आप बैठ के प्लानिंग के प्रोसीजर थोड़ी लिखोगे ना, सेंस बनता है ना यार इस चीज का। तो जब ये काम कर चुका हूं मैं, तो अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब ये थोड़ी कि मैं पीछे जाऊंगा मजे, समझ आ रहे हैं? अच्छा, ये करने के बाद टेक्निकली स्पीकिंग जो मेरे प्रोसीजर्स है वो ऑलरेडी इन सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। बस समझ आ रही है बात आप लोगों के बच्चों? यहाँ तक आप लोग क्लियर है यार? तो हमने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो प्रैक्टिस अब फाइनल की करनी है। और क्यों करनी है? इसलिए करनी है, देखिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो भी हो जा रहा है, सिनेरियो प्रैक्टिस दोनों की करनी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की भी करनी है। लेकिन एक चीज समझने की, जो मैं आपसे सवाल जिस सीक्वेंस में करा रहा हूँ ना, उसकी लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा कि पहले मैं एक उस सवाल का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उसी सवाल का मैं आपसे, ताकि हमें समझ में आए कि आईक्यू का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, समझ आ रही है? और जहां हमें ट्रेंड समझ में नहीं आएगा और क्या हमारी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में। ये स्पेलिंग 16 का सवाल आपको लग रहा होगा मैंने जल्दी में करवाया, मैंने जल्दी में नहीं करवाया था। मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे कैटेगोरिकली मेंशन है that debt related party was not previously communicated by the management to the auditor। तो बनता है सेंस यार कि मुझे ये क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई करी है। अब यही सवाल फाइनल में कैसे पूछा गया है? हाँ जी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और मार्क्स भी बढ़ा दिए उसने, तो इट मींस अब मुझे 2 सिनेरियोस लिखने पड़ेंगे। और चूंकि ये काम कर चुका हूं मैं, तो ये तो उसको एग्जिट मारे ना यार, ये तो प्रैक्टिकली नहीं होगा, ये प्लानिंग फेज है, ये प्लानिंग है। ये तो परफॉर्मेंस फेज में जो काम कर चुका हूं, तो अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें क्लियर होगा प्यारे बच्चा, तो हम इंशाल्लाह लिख सकेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं आपसे एक मजे की बात करूं? हाँ, एक आखिरी सवाल, बस सिर्फ आखिरी सवाल प्यारे बच्चों, प्लीज एक आखिरी सवाल है। अगर मेरी आंख खुल गई तो मिलेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। आ जाए। हाँ जी बच्चों, पेज नंबर, मैं आपको बताऊं, आप खुशी खुशी कर जाएंगे। फिर एक सवाल पढ़ने दो प्लीज, इसको समझ नहीं आता? हाँ, 10 के बाद एक मशवरा है तुम्हारे, तुम शादी ना करना, सही? स्टॉप वॉच लेके घूमता रहेगा क्या? तेरी टाइमिंग भी क्या होगी? 2 सेकंड। पेज नंबर पेज नंबर 310, आ जाए बच्चों, पेज नंबर 310, वॉल्यूम 1। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों के साथ एडजस्ट होने में, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी मैच करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही है? और वो एक बार हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह एक अच्छा कैजुअल एनवायरनमेंट में हम इंशाल्लाह चले बच्चों, आ जाए पेज नंबर 310। ये कौन से टाइम का सवाल है भाई? सितंबर 2020, कैफ 9 सितंबर 2020 में, पेज नंबर 310 वॉल्यूम 1। डन हो गया? सब आ गए? क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 20 सितंबर 20। कह रहे बच्चों क्या कसम खा लिए नहीं पढ़ना? हाँ, ऐसा नहीं, सिर्फ सवाल पढ़ेंगे, सही है? अच्छा, मिल गया सबको भाई? स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 सितंबर 20 में, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएल your audit team observed that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited at a loss of rupees 10 million. Your team further investigation of the matter and reading the minutes of the meeting of board of directors revealed that a director of CL holds 20% shareholding in MPL, which makes this entity as the MPL would pay 30% of the consideration in and the remaining amount over a period of, कितना नंबर का सवाल?
खुद से सवाल पढ़ा, सवाल खुद से पढ़ेगा अपनी फ्रीक्वेंसी से। लॉस भी 20 में नहीं आए, वहाँ नताशा थी, यहाँ पे मैपल है, बस ये चेंज उसने करा है, उसके अलावा उसने और कोई चेंज, वहां भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग थी, यहाँ भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, यहाँ पे उसने एक और चीज आसान कर दी, लिख दिया कि जी आपने रिवील किया है। अदरवाइज तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग से भी हो सकता है, बट उसको पता था कि कैफ के लिए कहीं ये वाली चीज मुश्किल ना हो रहा, तो उसने एक आसान चीज कर दी थी। बट द पॉइंट इज आंसर दोनों का एग्जैक्टली सेम है, और वो जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना प्यारे बच्चों, वो C-FAP का फॉलो कर रहा है। इस बात को आप गौर से समझने की कोशिश करें, और आगे जाकर हम जितने पास्ट पेपर्स वगैरह देख रहे होंगे, हमें एक चीज मैच होते हुए दिखेगी कि जो C-FAP का सवाल आ रहा है वही सवाल कहाँ कॉपी हो रहा है, वो इवन जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट पहले जो C-FAP में सवाल आए उसका वो कैफ में पूछ रहा है, और C-FAP में MSA का सवाल पूछ रहा है, MSA पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों, ये सवाल आप लोगों का होगा, ठीक है। और कुछ ग्रुप में मैं और सवाल बता दूंगा, और कल पिकनिक में मैं चेक करूंगा आप लोगों के सवाल क्या आप अपना अच्छे से ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बच्चों, खुदा हाफिज़।